नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत तेलंगाना की वज़ीर तालीम बनाई जाने वाली इंदिरा सविता रेड्डी ने आज बोडुपल कॉरपोरेशन की जानिब से एहतमाम करदा ख़वातीन की एक कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल होते हुए सैकड़ों ख़वातीन की एक जगह जमा होने पर खुशी का इजहार किया और बतलाया कि ख़वातीन को अब माहौल में 50% तहफ़्फ़ुज़ात देना ज़रूरी होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले ही CM KCR ने ख़वातीन को ज़बरदस्त बढ़ावा दे दिया है। बदकम्मा फेस्टिवल के ज़रिए साड़ियाँ बांटना शुरू की, वुमेन सोसाइटी को इंटरेस्ट फ्री लोन की इजराई अमल में लाई, साथ ही इनके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को परवान चढ़ाया, वी हब के ज़रिए उन्हें बढ़ावा दिया और ख़ुद हिफाजती इक़दामात के तहत शी टीम्स को लाया। सरकारी स्कूल्स में बच्चियों को खुद हिफाजती के लिए कराटे ट्रेनिंग के इंतजाम करवाए। फिर भी मज़ीद तरक्की के लिए ख़वातीन को अब और आगे आना चाहिए। రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం అనేది ముఖ్యమంత్రి గారికి సాధ్యమైంది. అది మార్కెట్ కమిటీలలో కూడా 50% మహిళలకు ఇచ్చే ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. దాంతోపాటు మహిళల పక్షపాతిగా పనిచేస్తూ కేసీఆర్ ప్రతి మహిళకి డెలివరీకి వెళ్ళిన ప్రతి మహిళకు ఈరోజు కేసీఆర్ కిట్ అందిస్తూ 12,000 రూపాయలు ఇస్తూ ఒక భరోసా కల్పించిన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్. దాంతోపాటు కళ్యాణ లక్ష్మి, ఒక ఆడబిడ్డ ఇంట పుట్టిందంటే గుండెల మీద పోపట్టి అనుకునేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు ఆడబిడ్డ పుట్టిందంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక లక్ష్మి ప్రతి కళ్యాణ లక్ష్మి ప్రతి పెళ్లికి కూడా ఈరోజు ₹1,16,000 అందిస్తున్న ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఈరోజు గౌరవ మంత్రులు కేటీఆర్ గారు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలు ఎదగడానికి ఈ హబ్ను ఏర్పాటు చేస్తూ ఒక 15 కోట్ల కార్పొరేషన్ తయారు చేస్తూ మహిళలు పారిశ్రామికంగా ఎదగడానికి ప్రమోదం చేయడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. ఇంచుమించు 7,000 పైన మహిళలకి దాని ద్వారా బియ్యం ద్వారా కూడా మహిళలు పారిశ్రామికతలు ఎదగడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఏదైనా 50% మహిళలకు చెందాలని సంకల్పంతో ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. ముఖ్యమంత్రి పనిచేస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగానే పారిశ్రామికంగా కూడా 14% ఉన్న మహిళలు 50% ఎదగడానికి ఈరోజు ప్రభుత్వం దోహదం చేస్తున్నందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి కేటీఆర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఏదున్న మహిళలు అందిపుచ్చుకొని అడుగు ముందుకు వేస్తే ఖచ్చితంగా విజయం మేమేంటంటే रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आज तेलंगाना सीड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में खातून अदीबों के लिए एहतमाम करदा सीड अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल होते हुए ज़राअत के सिलसिले में एक तारीख़ी बात दोहराई कि ये दुनिया में 10,000 सालों से चल रही है और इसमें गिरावट हमेशा इंसानियत के लिए ज़वाल का सबब बनी है। लिहाजा CM KCR की खुसूसी दिलचस्पी से रियासत तेलंगाना में ज़राअत को ज़बरदस्त बढ़ावा दिया गया है, जिसकी वजह से आज रियासत में उगने वाले बीजों की उपज सारे मुल्क में नुमाया मुकाम पा गई है और इस तरह से तेलंगाना भी अब ऊंचे मुकाम पर आ गई है। शहर हैदराबाद के मशहूर समाजी कारकुन नासिर खुलाकी की सदारत में अजीम शान पैमाने पर लेट उस्ताद सालेह खुलाकी मेमोरियल क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट्स का एहतमाम सुल्तान शाही के क्रिकेट ग्राउंड में एहतमाम किए जाने के सिलसिले में आज एक जायजा इजलास रखा गया। इन टूर्नामेंट्स में शहर के कई ग्राउंड्स की क्रिकेट टीमें हिस्सा लेने वाली हैं, जिनके लिए एंट्री फी 1,500 रुपये रखी गई। शराइत में बतलाया गया है कि हर मैच 5 ओवर्स पर मबनी होगा और अंपायर का फैसला ख़तई माना जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए इन मोबाइल नंबर्स पर रब्त पैदा करने के लिए कहा गया है। 9948465636 ये नंबर इरफान गौली का है। 8309370594 पर मिन्हाज से राब्ता पैदा किया जा सकता है और 9700958388 पर
فرقان سے بات چیت کی جا سکے گی۔ جیتنے والے ٹیموں کے لیے انعامات بھی رکھے گئے ہیں۔ پہلا انعام 50,000 کی نقد رقم کا ہے اور رنر اپ ٹیموں کے لیے 25,000 کی رقم رکھی گئی ہے۔ 22 دسمبر کو پہلا مقابلہ کروانا طے پایا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا استاد صالح خلاقی میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد عمل میں آنے والا ہے 22 دسمبر سے سلطان شاہی پلے گراؤنڈ میں، جس کا افتتاح جناب ممتاز احمد خان صاحب MLA حلقہ چار مینار، جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب اور چار مینار حلقے کے سبھی کارپوریٹرز اس افتتاحی تقاریب میں شرکت فرمائیں گے۔ اور آج جو ہے ونرز کپ اور رنرز اپ کپ کا لانچنگ کا پروگرام عمل میں آیا ہے۔ میری حیدرآباد کی سبھی چھوٹی بڑی ٹیموں سے گزارش ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں شرکت فرما کر جو ہے حوصلہ افزائی کریں ایک دوسرے کی۔ اس کا وننگ پرائز جو ہے 50,000 روپے ہے اور رنرز اپ پرائز 25,000 روپے ہے۔ سیکنڈ رنر اپ شاید 15,000 روپے ہے، 25,000 روپے ہے۔ تو انشاءاللہ رجسٹریشنز جو ہے کھل چکے ہیں، تو آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس میں جو ہے 1,500 روپے انٹری فیس رکھی گئی ہے، جس کے اسپانسر جو ہے ناصر خلاقی صاحب ہیں، جو تلنگانہ ایمیچر ریسلنگ ایسوسیشن کے صدر ہیں، جنرل سیکریٹری ہیں ناصر خلاقی صاحب۔ ان کی نگرانی میں یہ ٹورنامنٹ آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ جو ہے عرفان گولی، فرقان، اسلم، عبدالخوی صاحب سے کانٹیکٹ کر کے اپنے رجسٹریشنز کروا سکتے ہیں۔ یہ میچ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف نائٹ میچ ہوگا، 5 اوورز کا میچ ہے، تو اوپن ڈرا کے ذریعے آپ لوگوں کے میچز فکس ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے پھر سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے رجسٹریشنز نمبرات آپ کو میڈیا کے ذریعے مل جائیں گے، آپ لوگ اپنے رجسٹریشنز کروا لیں انشاءاللہ۔ تاریخ سے 30 تاریخ تک یہ میچز کھیلے جائیں گے۔ 30 تاریخ کو یہ میچ کا فائنل عمل میں آئے گا سلطان شاہی پلے گراؤنڈ میں۔ ٹیمز کو ڈریس اپ دیں گے، جو بھی ڈریس کوڈ رہے گا ان کا وہ ڈریس کوڈ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے دادا کے نام سے کرا رہے ہیں انشاءاللہ سلطان شاہی پلے گراؤنڈ میں۔ یہ استاد صالح خلاقی کے نام سے ہوں گا انشاءاللہ، اور زیر نگرانی احمد بلالہ صاحب، ممتاز احمد خان صاحب اور احمد بلالہ صاحب رہیں گے انشاءاللہ، اور سید احمد پاشا قادری صاحب رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا سیزن ہے انشاءاللہ، اس کے بعد ہر سال ہوتے رہیں گا انشاءاللہ۔ ان سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ کیسا بھی زیادہ سے زیادہ شرکت کریے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دادا استاد صالح خلاقی میموریل ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں، جس میں زیر نگران جناب ممتاز احمد خان MLA صاحب جو اس کی آپ کے اوپننگ کریں گے، اور آپ کے احمد پاشا قادری صاحب، احمد بلالہ صاحب، اور جتنے بھی کارپوریٹر ہے ابو راحل صاحب، مظفر صاحب، ڈاکٹر امتیاز احمد خان صاحب، ڈاکٹر عرفان احمد خان صاحب، جو بھی ہے جتنے بھی ہے جو میرے ساتھ میں ہیں، عرفان احمد صاحب، عرفان احمد گولی، جو آپ کے رنر جو بھی رہیں گا اور ونر جو بھی رہیں گا، سمجھو جیتنے والے کو سمجھو 50,000 اور آپ کے سیکنڈ والے کو 25,000 روپے، انٹری فیس 1,500 روپے ہے۔ اور اچھے آپ کے 22 تاریخ کا روز 6 بجے مغرب کے وقت جناب ممتاز احمد خان MLA صاحب آئیں گے، جب بھی اوپننگ سربراہی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سبھی سے جتنے بھی جو ٹیمہ وغیرہ جو بھی ہے ان کو میسیج کر دیجیے آپ کے چینل کی طرف سے، اور GMC کی طرف سے بھی بہت بڑا ہمارے کو تعاون رہا۔ MLA صاحب بھی بہت بڑے تعاون کرے ہمارے گراؤنڈ کے واسطے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کی سبھی کے لیے گزارش ہے، انٹری فیس 1,500 روپے رہیں گے انشاءاللہ۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद की कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बीजेपी हुकूमत के अलानिया मुस्लिम दुश्मनी में लाए जाने वाले मुतनाज़िया CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में आज दारुसलाम हेडक्वार्टर में एहतजाजी जलसा बुलाए जाने के बाद तेलंगाना के वाहिद मुतनाज़िया बीजेपी के MLA राजा सिंह ने भी ज़रूरी समझा कि उन्हीं की मरकज़ी हुकूमत के लाए जाने वाले मुतनाज़िया बिल्स की तायद में वो 28 दिसंबर को इंदिरा पार्क के धरना चौक के बिल्कुल करीब NTR स्टेडियम में जलसे आम करें। हालांकि इन बिल्स के ताल्लुक से अगर ये खुद भी कुछ समझ गए होते तो अपनी ही जगह से समझा देने में कामयाब हो जाते, जिस तरह से मरकज के लोग समझाते आए हैं। CAA के विरुद्ध में आज हैदराबाद में MIM द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। आप सबको पता है कि ये सभा क्यों लगाई गई। देश के मुसलमानों को भड़काने का एक षड्यंत्र MIM द्वारा उसी उद्देश्य से आज सभा लगाई गई। मैं भारत के मुसलमानों से ये पूछना चाहूँगा, क्या आपने जो बिल जो पेश किया है, जो नया जो कानून लाया गया है, क्या इसकी जानकारी भारत के मुसलमान को है? आज जो लोग धरना प्रदर्शन, जो तोड़ फोड़, जो आगजनी कर रहे हैं, जो सरकारी वाहनों को एवं अनेकों लोगों पर जो हमले कर रहे हैं, क्या उन सबको मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपने ये बिल पढ़ा है? ये एक्ट के बारे में जानकारी है? अगर जानकारी है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ये जानकारी ले सकते हैं। ये एक्ट आने के बाद में भारत में रहने वाले ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, किसी को किसी प्रकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। खास करके मुसलमान डरने की आवश्यकता नहीं है। आज कुछ पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे MIM हो या कांग्रेस हो या TMC हो, ये लोग जानबूझकर भारत देश का माहौल ये लोग खराब कर रहे। तो मैं भारत के मुसलमान को ये कहना चाहूँगा कि इनके बहकावे में ना आए और देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए आप लोग साथ दें। और मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री एवं DGP को ये कहना चाहूँगा कि अगर MIM को आज आप सभा के लिए अगर परमिशन देते हैं तो मैं भी CAA के समर्थन में एक सभा करना चाहूँगा। जैसा आप उनको लीगली परमिशन देते हैं तो आप मुझे भी लीगली परमिशन दें। मैं आम जनता को ये बताना चाहूँगा कि CAA इस एक्ट के लिए, इस ये कानून में ना हिंदू को परेशानी है, ना मुसलमानों को परेशानी है। ये हम आम जनता को हम बताना चाहते हैं। मरकजी बीजेपी हुकूमत की जानिब से बड़े ही मनसूबाबंद अय्याराना तरीके से लाए जाने वाले मुतनाज़िया CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में जहां सारे भारत में अक़लियती तबका ज़बरदस्त एहतजाज से जुड़ा हुआ है और हुकूमत की पुलिस इस एहतजाज को कुचलने के लिए बंदूकों के जोर पर कत्लेआम करते हुए सैकड़ों को जख्मी करके रख दिया है, और ऐसे मुतनाज़िया बिल्स को लागू करने से पहले ही इस पर अलानिया अमल दरामद होने वाले पस मंज़र में तेलंगाना के मशहूर सदर मुकाम हैदराबाद की अवाम ने भी खुलेआम मुस्लिम दुश्मनी वाले CAA व कैब बिल्स के खिलाफ में आज खामोश एहतजाज मुनज़्ज़म किया और अपनी सारी दुकानें बंद रखी और बीजेपी हुकूमत के उस इरादे का साथ दिया जिसके मुताबिक किसी को कोई नुकसान पहुंचता है तो पहुंचने दीजिए, हुकूमत को इससे क्या लेना देना है। जबकि नोटबंदी और GST से पहले ही हिंदू अवाम टूट कर बिखर गई थी और अभी तो GDP भी मुल्क को ज़बरदस्त मुंह चुड़ा रहा है, लेकिन अवाम उलझी हुई है CAA व NRC में। है ना मजे की बात।
ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के नायब सदर राशिद खान ने आज मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुल्क में इंतशार फैलाने वाले मुतनाज़िया CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में मासाब टैंक इलाके में वाक़े ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड में एक अजीमुशान एहतजाजी जलसे को मुखातिब किया। बाद अज़ां धरना चौक जाकर मोदी व अमित शाह के खिलाफ में एहतजाज करते हुए नारे बुलंद किए। वाज़ेह रहे कि सारे मुल्क में एहतजाज के दौरान कई लोगों के ख़त्म हो जाने के बाद अगर कोई इंसान होता तो वो नरम दिल ज़रूर हो जाता। मुस्लिम सिख ईसाई जैन मुस्लिम का नाम कहीं नहीं है, यहाँ जो ठहरे हुए पूरे मुस्लिम हैं, कोई नाम नहीं है यहाँ पे। और जो आज़ादी हुई है उसमें मुस्लिम शामिल सिर्फ ओनली मोदी के लिए। मोदी 2016 में डिमोस्ट्रेशन करा था, अभी भी दिसंबर में ही वो कर रहा है। क्यों नहीं बना रहा है? हमारे अगेंस्ट है, वो हमको टारगेट कर रहा है, सिर्फ मुस्लिम को टारगेट कर रहा है, हिंदू मुस्लिमों के साथ है, उन्हें टारगेट कर रहा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद रखना। आज ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है माधव टैंक प्ले ग्राउंड हॉकी प्ले ग्राउंड के पास, ये NRC और CAA के खिलाफ है। जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो भारी एक्सटेट के साथ जो पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास किए, आज उसी वजह से आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मुसलमान पूरे भाई एक जगह है। हमको ये NRC नहीं चाहिए, हम NRC के खिलाफ है। CAA नहीं चाहिए, हम CAA के खिलाफ है। जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये बिल। आज हम इसीलिए संविधान के खिलाफ बोलो। NRC और CAA जो बिल पास हुई है वो हमारे संविधान के खिलाफ है, मुस्लिमों के खिलाफ साजिश है। और मोदी सरकार तमाम हिंदुस्तानियों के ऊपर सबने खून बहाया है। हम भी इतने 60 सालों से मुसलमानों ने खून बहाया है, हम भी उतने ही हिंदुस्तानी जितने वो है। और मुसलमानों को 1970 की पता हुआ है, हम कहाँ से बताएंगे? हमारे पास कहाँ से रहेंगे? NRC का है साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस फोर्स से वाबस्ता हेड कांस्टेबल शफीउद्दीन का आज एक तहसीन आफरी अमल CCTV कैमरास के जरिए आवाम के करीब पहुंचा, जिसमें देखा गया कि स्टेशन से निकलने वाली दानापुर एक्सप्रेस के S12 कोच से उतरने वाली एक खातून मुसाफिर को शफीउद्दीन ने बदहवासी में उतरने में मदद करते हुए नीचे गिरकर हलाक हो जाने से बचा लिया। CCTV में कैद इस वाक़े का नज़ारा करने के बाद सभी मुतालिका लोग और आवाम ने उनके इस अमल की ज़बरदस्त सताइश की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल तेलंगाना यूनिट की तरफ से आज नीलफर हॉस्पिटल नामपल्ली में बीमारों और तीमारदारों के लिए दोपहर के खाने का इंतजाम किया गया था। सदर काउंसिल मौलाना असरार हुसैन रजवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहरियत तरमीमी कानून के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां आम की जा रही है। इस सिलसिले में सज्जादा नशीन काउंसिल के सदर दीवान ज़ैनुल आबिदीन अली खान के बयान को भी तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। असरार हुसैन ने बताया कि उनकी काउंसिल इस कानून और NRC से मुतालिक मुसलमानों के एहसास और जज्बात से मरकजी हुकूमत को आगाह करेगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इस कानून से
आम मुसलमानों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वह एहतजाज को पुरअमन बनाए रखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम आज मैटरनिटी हॉस्पिटल और नीलोफर हॉस्पिटल के मरीजों के लिए और उनकी देखभाल करने वाले उनके जो अहिब्बा तलबा हैं उनको खाना खिलाया गया। हज़रत दीवान सैयद आज़म अली खां साहब सज्जादा नशीन बारगाह गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साहबजादे हज़रत ख्वाजा पीर नसीरुद्दीन चिश्ती दामद वालिया जो इस काउंसिल के सदर नशीन हैं और दीवान साहब का सरपरस्त हैं, उनकी ईमा पर उनके ही हुक्म से हम ये इक़दाम किए हैं। इसमें मौलाना खलीफा गिरफ्तारी, मौलाना वहीद पाशा साहब और लियाकत हुसैन इसमें ज़्यादा हिस्सा लिए हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आज जो ये मुल्क का माहौल बना हुआ है, चौ तरफ आग लगी हुई है, एजुकेशन हो रहा है, शिद्दत से हड़तालें की जा रही हैं, तो सूफियाए कराम एक निराले अंदाज में एजुकेशन कर रहे हैं कि गरीबों को, बीमारों को खाना खिलाएं और उनसे दुआ करवाएं, क्योंकि सरकार का इरशाद है बीमार की दुआ कबूल होती है। तो बीमार की खिदमत कर रहे हैं, यकीनन उनकी दुआ कबूल होगी। दुआ क्या है कि मुल्क में अमन शांति बहाल रहे, मुल्क में इत्तेहाद बहाल रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहे और सबका भला हो। आप ये देख रहे हैं कि खाना जो तकसीम हो रहा है सिर्फ मुसलमानों में नहीं हो रहा है, बल्कि दीगर अक़वाम के लोगों में भी खाना तकसीम हो रहा है, क्योंकि ये मखलूक़ खुदा है। सूफिया का नज़रिया है कि अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, खल्क़ अल्लाह की आयाल है। और एक बात, जब से इस्लाम फैला है और सूफिया के आस्थाने आबाद हुए हैं, ये बात देखने में आई है कि मस्जिद में सिर्फ मुसलमान जाता है, मंदिर में हिंदू जाता है, गुरुद्वारे में सिख जाता है और चर्च में पारसी जाता है और आतिशकदे में चर्च में ईसाई जाता है और आतिशकदे में पारसी जाता है। मगर एक बुज़ुर्ग की खानकाह या दरगाह ऐसा मकाम है कि जहाँ हर कौम, हर मिल्लत का आदमी सर टेकने आता है। क्यों? कि वो क़ल्बी सुकून चाहता है, ज़हनी सुकून चाहता है। इन औलिया अल्लाह के आस्थानों पर ज़हनी सुकून नसीब होता है, क़ल्बी सुकून नसीब होता है। जो आफ़ात व बलियात में वो घिरे हुए होते हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा सरफराज फरमाता है अपने महबूब बंदों के ज़रिए से। यानी गिरामी, यही काम को लेकर आज हम आगे बढ़े हैं। अल्लाह ताला से कबूल फरमाए और हज़रत दीवान साहब क़िबला जो हमारे सरपरस्त आला हैं और उनके बड़े साहबजादे नामजद जानशीन सैयद नसीरुद्दीन साहब जो हमारे सदर हैं काउंसिल के, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। और हम उनके तवस्सुत से हुकूमत तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि इस कानून को तावक्ते के हमसे मशवरा न किया जाए तब तक लागू न किया जाए, इसको रोक दें। अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ पहुँच, हज़रत दीवान साहब क़िबला ने एक बयान दिया, उस बयान को लोग समझने से क़ासिर हैं। वो बयान में अपने ये कर फरमा रहे हैं ये मुसलमानों के लिए मदरसा नहीं है। अगर ऐसा है भी तो हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि एक आला इख्तियारी कमेटी बनाए और वो हम लोगों से मशवरा करे और इसमें क्या नक़ाइस हैं, क्या ख़राबियाँ हैं इस कानून में, उसको दूर करें फिर लागू करें। अगर कोई नुकसान हो रहा है, कानून में कोई नुक्स है, तो उसके लिए हम आगे बढ़े हैं। चुनांचे औक़ाफ़ के कानून में भी नक़ाइस हैं आज भी, तो उसके लिए हमारे तरफ से बड़ा मुत्तहिदा तौर पर बड़े तौर पर जो है हमने मुत्तहिदा तौर पर उसका भी हमने मुकाबला किया है। जामे मिल्लिया के साथ जो हुआ है और वहाँ के तलबा को जो ज़हमत दी गई है उसकी हम मज़म्मत करते हैं, सख्ती से मज़म्मत करते हैं। किसी के साथ भी अगर जुल्म होता हो, चाहे वो पुलिस का हो, फ़ौज का हो, CRP का हो या हुकूमत की किसी कारिंदे का हो, हम उसकी मज़म्मत करते हैं, क्योंकि तकलीफ़ पहुंचाना हुकूमत का या हुकूमत के कारिंदों का काम नहीं है, बल्कि हुकूमत का काम ये है कि आवाम की भलाई देखे और आवाम को सहारा दे, आवाम को शेल्टर दे और आवाम के लिए सहूलतें मुहैया करे। यही
درخواست لیے ہوئے ہم بھی حکومت سے رجوع ہیں، اور ہمارے سرپرست اعلیٰ حضرت دیوان شیر العابدین صاحب قبلہ اور ان کے صاحبزادے سید نصیر الدین چشتی صاحب جو اس ہماری ایسوسیشن کے یا ہمارے آرگنائزیشن کے سرپرست ہیں، صدر ہیں، ہم ان کے توسط سے یہ پیام حکومت ہند تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ حکومت ہند اس قانون کو اگر یہ پورا ہی کسی کے لیے نقصان دہ ہے تو قطعاً لاگو نہ کرے۔ اگر ہندوؤں کو پہنچ رہی ہے تو تکلیف پورے ملک کو پہنچ رہی ہے، کیونکہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو مختلف پھولوں کا گہوارہ بنا ہوا ہے، گلدستہ بنا ہوا ہے۔ یہاں ہر قوم، ہر ملت کے لوگ بستے ہیں اور سب کا احترام کیا جاتا ہے۔ آزادی ہند کے بعد سے بھی یہی دیکھا گیا کہ تمام اقوام کا، ان کے عقائد کا، ان کے مذہبوں کا احترام ہوتا رہا، اور ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسا احترام پہلے کیا جاتا تھا اب بھی احترام کیا جائے سب لوگوں کے عقائد کا، ان کے مذہب کا اور ان لوگوں کا۔ ایک انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا انسان بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مختلف اقوام کے لوگ احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں، مگر صوفیاء کرام سڑکوں پر نہیں نکلتے، خانقاہوں میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، اور اسی فارمولے کو ہم لے کے آج آگے بڑھے ہیں کہ مریضوں سے ہم دعا کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک میں امن، سلامتی اور شانتی بحال رکھے اور ہمارا ملک ترقی کرے۔ آمین بجاہ طٰہٰ۔ प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार ने आज जोनल कमिश्नर खैरताबाद मुशर्रफ अली फारूकी के हमरा तारीखी मोजम जाए मार्केट का दौरा किया और उसकी तदरीन नौ के कामों का मायना किया। उन्होंने इन कामों की आजलाना तकमील की जरूरत पर जोर दिया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अरविंद कुमार ने कहा कि तारीखी विरसे की हामिल इस इमारत का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। मोजम जाए मार्केट में मीट मार्केट के काम के लिए वेटरनरी डिपार्टमेंट के अहदेदारों से तजावीज़ तलब की गई हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले नामपल्ली पुलिस के कांस्टेबल पंकज कुमार और अफजलगंज से वाबस्ता कांस्टेबल मोहम्मद को मुअत्तल कर दिया है। बताया जाता है कि पंकज कुमार ने अंबरपेट ग्रुप नामी एक व्हाट्सएप ग्रुप में जामिया मिलिया की एहतजाजी तालिबात के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पर मोहम्मद ने भी जवाब में गैर महज़ब अल्फाज का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर मुसलमानों और दर्जे फहरिस्त अक़वाम को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया और सवाल किया कि आखिर चीफ मिनिस्टर एनआरसी को लागू न करने से मुतालिक ताहाल कोई बयान क्यों नहीं दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि हुकूमत पंजागुट्टे के पास B.R. अम्बेडकर के मुजस्समे को मुनज़्ज़म करवा दिया। उन्होंने वज़ीर नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि वो मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का मंसूबा रखते हैं और इसी एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है। वी हनुमंत राव ने बिहार में मुतनाज़ा कानून को रुबेमल न लाने चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार के ऐलान का खैर मकदम किया। मरकजी वजारत माहौलियात ने तेलंगाना में 5,872 करोड़ रुपए मालियती थर्मल पावर प्लांट के क़याम की इजाज़त दे दी है। रियासत के ज़ेर इंतज़ाम सिंगारानी कॉलोनीज ने मंचिरियाल के मौजे पिकदापल्ली में सिंगारानी कॉलोनीज के 1200 मेगावाट के पावर प्लांट को बढ़ाते हुए 2000 मेगावाट करने की इजाज़त तलब की थी। मरकजी वजारत माहौलियात ने इसके बजाय 600 मेगावाट के 2 प्लांट कायम करने की तजवीज़ दी है। सिंगारानी कॉलोनीज के डायरेक्टर एस शंकर ने बताया कि रियासत के थर्मल पावर प्लांट में फाजिल बरखी की पैदावार हो रही है। डिप्टी जनरल मैनेजर विश्वनाथ राजू ने बताया कि मौजूदा प्लांट के मुतसिल 127 हेक्टेयर अराजी हासिल करने का मंसूबा बनाया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।